Okay, so we did analysis, literary discourse analysis in lecture 20, 21 and 22. And I hope if you are given anything regarding analysis, so you will not face any problem. जो आपका analysis बनता है आप वो बता देंगे, and this way you will be able to attempt that question. Is my voice clear to all of you? Yes, sir. Only 4 are present, unfortunately. तो कोशिश यही करूँगा कि आज अगर शाम में रात 9 बजे के बाद क्लासेस पॉसिबल हुई तो लेके लिटरेरी डिस्कोर्स एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग को मैं एंड कर दूँ, एंड टुमारो आई विल ट्राई टू कंप्लीट media discourse analysis. This is, remember, not media discourse analysis, this is again literary discourse and journalistic writing. And from next week we have presentations. ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपने ज़हन में रख लीजिएगा. From 13 your exams starting, and on 13 you have a paper with me. One will be online and second will be physical, means on campus. तो कोशिश ये होगी कि 10 से पहले हम फारिग मैं आपको फारिग कर दूँ, presentation वगैरह भी ख़त्म हो जाए, और you should get free, and then you'll have to give your 50 take your 50 marks paper. News, writing a news story. Have you ever tried to write a news story? Yes. Have you ever tried to write a news story? No, sir. No. Read to kiya hoga na? Yes, sir. So what characteristics do you find in a news story? Yes. सर न्यूज़ के बारे में पूरा डिटेल से न्यूज़ स्टोरी में मतलब बताया जाता है. न्यूज़ के बारे में क्या मतलब, कैसे आपने पढ़ा होगा? हर किसी भी किस्म की न्यूज़ स्टोरी की बात कर रहा हूँ. I'm not talking about किसी वाक्य को बिल्कुल मतलब हाँ किसी भी स्टोरी किसी भी न्यूज़ को लेके उसके मतलब ज़ाहिर है जब न्यूज़ आती है तो वो तो मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं न्यूज़ में वो बता दिए जाते हैं, लेकिन स्टोरी में उसके बारे में उनकी पूरी डिटेल्स वगैरह स्टोरी में कवर की जाती है. Okay. What is news writing? News writing क्या होती है? News writing is the writing for publication in a newspaper, often reporting current events, जिसमें current events की बात की जाती है. And who are the target audience of news writing? Who are the target audience of news writing? Shopkeepers, businessmen, or who? Who reads newspaper? भाई कौन हो सकता है? कौन रीड करता है? स्टूडेंट. सर आम पब्लिक करती है, तकरीबन सभी करते हैं. It is for, of course, everyone. It is for everyone. Whether Zara, if we are talking about newspaper, so it means we are talking about educated people. Educated means even a person who can read or write. उसको भी इसमें आप शामिल करेंगे तो इसका रेशियो बहुत बढ़ जाएगा. ठीक है? We are not talking about highly qualified or highly educated people. We are talking about only those who can even read or write. They are also the target audience of news writing. News writing is an attempt to answer all the basic questions about any particular event. क्या क्या basic questions हो सकते हैं? Who, what, when, where, and why. The 5 W's. And also often how at the opening of the article, और कैसे. इन तमाम के जवाब उस न्यूज राइटिंग के अंदर दिए जाते हैं. Now, this is what we call news writing. Let me show you one example from our news writing.
You can see I have opened a page in front of you. Can you see? नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें देखिए बहुत सारे न्यूज आइटम्स हमारे पास है. कमर्शियल यूज ऑफ मिलिट्री लैंड इनवॉइस CGP, इसको हम ओपन कर लेते हैं. Now here you will find commercial use of military land annoys CGP. CGP means Chief Justice of Pakistan. Supreme Court, SC abbreviation. Supreme Court seeks report on decision of all services chiefs on the matter. Now your news story starts from here. ये आपका स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है. First paragraph is always very catching. That is called lead, where you will talk about things briefly. ये जो बताएंगे उसको नीचे डिटेल से बताया जाएगा. डिटेल से ये एक तरह से इंट्रोडक्शन भी कहलाता है. जो आपको मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. डू यू रिमेंबर? Here you can see the Supreme Court on Friday lashed out. The Supreme Court on Friday lashed out the Defense Secretary over commercial activities and construction of housing societies on cantonment land and summoned him along with the report carrying details of decisions of all services chiefs on the matters. अब असल में बात ये और एक ही जुमले में बात कही भी इन्होंने. इसमें आप देखिए कोई आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, कोई दूसरा सेंटेंस नहीं मिलेगा. Is that clear? So this is news story starting with the main heading, the most important news, the most important you can say news item. ये इसका असल है. इसके बाद फिर उन्होंने डिटेल पे बता. Now let's get back over there. So news writing is an attempt to answer all the basic questions about any particular event. Who, con, what, when, where and why. And also often how at the opening of the article. Mazid क्या कह रहे हैं कि how to write a news story. So here is something very few people realize. बहुत कम लोगों को इसका पता चलता है. Writing news story is not particularly difficult. ये कोई मुश्किल काम नहीं है. आप बहुत से लोग वो सोच रहे हैं बड़ा मुश्किल काम है. It does take practice and not everyone will be an expert, but if you follow the guideline below you should be able to create effective news item without too much stress. मतलब इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह you'll also be able to write a very effective news item. The 5 W's and the H. JS में आपने इसका ख्याल रखना है. This is the crux of all news. You need to know 5 things: who, what, where, when, why, and how. Any good news? दोबारा से फर्स्ट स्लाइड से आइएगा. What is news writing? News writing basically होता है क्या? तो it is the writing for publication in a newspaper. यानी कि जो writing जो भी हाँ वो current news से मुतालिक हो, हाँ वो किसी भी टॉपिक पर हो, any topic that is published in a newspaper that is related to news writing. Normally news writing are reported in news writing. Current events are reported, any current event, right? There are many writers who write and they are paid for the writing who write on different issues. Journalists write on different events, just like this is a very important event. Yesterday Chief Justice of Pakistan took notice, so it has become a very important event. And there are many other events. Front page पे जो भी आते हैं वो सारे अहम events होते हैं. So news writing is an attempt. तो ये कोशिश होती है to answer all the basic questions. जो questions जो होते हैं वो यही होते हैं: who, what, when, where and why, and also how. इनके आपने सवाल दे रहे थे, किसने किया, क्यों किया और कैसे किया, कब किया, कहाँ किया, ये सब के आपने जवाब देने होते हैं उस इवेंट से मुतालिक. Is that clear? Yes, sir.
आपसे कहा जाए एग्जाम्स में कि एक छोटा सा न्यूज राइटिंग लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी, ये जो 5 W's and the H. Any good news story provides answer to each of these questions. इन सब के सवालात के जवाबात वो एक अच्छा न्यूज जो राइटिंग है वो प्रोवाइड कर देगा. You must drill these into your brain and they must become second nature. ये आपके जहन में बैठ जाने चाहिए. For example, if you wish to cover a story about a local sports team entering a competition, you will need to answer these questions. मिसाल होता है आप एक स्टोरी को कवर करना चाह रहे हैं, उसका ताल्लुक आपके इलाके से, और आपके इलाके में आपकी जो टीम है वो एक जो है नेशनल लेवल पे जा रही है परफॉर्म करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको कवर कर रहे हैं. तो उसको कवर करने के लिए तमाम सवालात के जवाब आपने अपने न्यूज स्टोरी में देने होंगे. आर यू गेटिंग मी? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ. Yes. One by one, according to their importance. मिसाल के तौर पे, who is the team? Who is the coach? Who are the prominent players? Who are the supporters? What sports do they play? What is the competition? Where is the competition? Where is the team normally based? When is the competition? How long have they been preparing? कहाँ कब है competition और कब से तैयारी कर रहे हैं? Are there any other important time factors? कोई और भी time factors हैं इनके लिए हैं? Why are they entering this particular competition? If it is relevant, why does the team exist at all? Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. When is the competition? How long have been preparing? Are there any other important time factors? Why से अगर पूछेंगे, why are they entering this particular competition? How are they going to enter the competition? Do they need to fundraise? How much training and preparation is required? What will they need to do to win? ये सब सवालात हैं जिनके जवाबात आपने देने होंगे in your news story. Is that clear? ये आपको कॉन्टेक्स्ट दिया कि Yes, you have to cover a story about a local team or local sports team of your area which is going to participate in a national competition. तो उसके लिए आपने इसमें क्या किया, ये इन सवालात के जवाब आपको तलाश करने होंगे और उसको आपने लिखने होंगे. इस तरह से एक और था, उसमें आपके पास था कि who the Atlanta police department what hold a memorable survey, से पूरा उसका एक था. अच्छा, when you write a news story, so you need to follow the style that is called inverted pyramid. Inverted pyramid. कभी नाम सुना inverted pyramid का? no, sir. नहीं सुना. अभी तो सुन लिया आप लोगों ने. आज सुना, sir. आज सुना ना, तो सुन तो लिया, फिर आपने नो क्यों था? Yes, sir. सुना है. अच्छा, पहले नहीं सुना, sir. अच्छा पहले नहीं सुना, तो ये आप क्लेरिफाई करेंगे सर, पहले नहीं सुना था अभी सुन लिया. राइट. तो इन्वर्टेड पिरामिड ये एक किस्म का स्टाइल होता है न्यूज राइटिंग में. इट ऑलवेज फॉलोज द इन्वर्टेड पिरामिड. इन्वर्टेड पिरामिड होता है ना, ऊपर से ऊपर बड़ा होता है, फिर नीचे नीचे आके छोटा होता जाता है. तो इन्वर्टेड पिरामिड मींस यू शुड प्लेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रेसिंग फैक्ट्स एट द स्टार्ट ऑफ द आर्टिकल. जो सबसे सर अहम आपने तो फैक्ट. स्लाइड चेंज की है. यस, नहीं हुई आपके पास? ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही सर यहाँ है. नहीं हुई. इट्स अ प्रॉब्लम. Inverted pyramid. So for writing news, always follow the inverted pyramid. जब आप write करें news को, किसी भी news को लिखेंगे तो उसमें आपने इसको follow करना है, inverted pyramid. Inverted pyramid का मतलब क्या है? You should place the most pressing news or fact. जो भी news के हवाले से fact जमा किए, में जो सबसे ज़्यादा अहम और attractive fact है और अहम है, it should be at the start of the news and close with the least compelling elements. और जो सबसे कम
दर्जे का एलिमेंट है उससे आपने क्या करना है, क्लोजिंग करनी है, और जो सबसे ज्यादा अहम फैक्ट है उससे आपने स्टार्ट लेना है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, उससे कम एम, फिर कम एम, फिर कम एम, और सबसे कम एम जो होगा उससे एंड कर देंगे। ये होता है क्या, इन्वर्टेड पिरामिड। अगर आप उसको डायग्राम की सूरत में देखेंगे तो आपने देखा होगा इन्वर्टेड पिरामिड जो है शुरू में बहुत चौड़ा होता है, उसके बाद ऐसा ऐसा करके नीचे आता है। देखा आप लोगों ने, दिखाऊं या इन्वर्टेड sir. पिरामिड कभी देखा आपने? और shall I show you the image? Yes, sir. News story. न्यूज स्टोरी में आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, वो भी इसी काइंड के होते हैं सर। यस, इन्वर्टेड पिरामिड इमेज, ये देखना। ये you can see over here, this is called inverted pyramid। ठीक है, मोस्ट न्यूज वर्दी इंफॉर्मेशन, ये पिरामिड की इमेज है कि सबसे पहले ये जो चौड़ा हिस्सा है, here you will find the most important one, then less important, then less, फिर आखिर में least important। तो आखिर में आते आते इतना लीस्ट हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है ये। तो ये पिरामिड उन्होंने बताया कि दिस इज समथिंग दैट वी शुड फॉलो इन न्यूज स्टोरी। ये देखें, पहले आपके पास हेडिंग आता है, उसके बाद लीड आती है, उसके बाद फिर मजीद चीजें आती है, फिर कॉपी, फिर उसके बाद द किकर जो भी हो। ये आपके पास एक और डायग्राम है, इसमें भी यही चीजें बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ी क्लियरेंस नहीं है, जस्ट वेट, इसको यूं हम देख लेते हैं कि अगर क्लियर हो जाए। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ राइटिंग फॉर वेब, क्लियर हो रही है? इसको देख लेते थोड़ा। Anyhow, you can see here, ये आप पिरामिड देखिएगा तो इसमें बताने का मतलब ये कि सबसे टॉप वाली जो फैक्ट है वो आपका ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे उससे कम, फिर से कम, फिर सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट और फैक्ट होगा वो नीचे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल इन न्यूज स्टोरी, राइट। न्यूज वर्दी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह जो भी है, तो उस लिहाज से वो कम एम वाली जो न्यूज है वो नीचे आ जाती है। Okay, so is that clear, visible to you? Slide visible है आप लोगों के सामने? Yes. तो बात समझ आ रही है? Yes, इन्वर्टेड sir. पिरामिड से मुराद क्या थी? इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल मींस Yes, sir. फर्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले तो आपका जो टाइटल है वो आएगा, उसके बाद आपकी लीड मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ द स्टोरी, अभी आपको बताऊंगा। So for news writing, always follow the inverted pyramid style. Inverted pyramid means you should place the most pressing facts at the start of the article and close with the least compelling one. Avoid long or complicated words. इनका थोड़ा ख्याल रखिएगा, long और complicated words जो है उनसे बचेगा। A news story is not a place to impress people with your intelligence or command of the English language. तो ये भी है कि ये वो जगह नहीं जहाँ पे आप लोगों को स्लाइड चेंज नहीं हुई। स्लाइड चेंज नहीं हुई है, मेरे पास स्लाइड चेंज हो चुकी है। क्या सबके साथ यही मसला आ रहा है? यस सर। ये स्लाइड चेंज नहीं हुई आप लोगों के पास? नो सर, अभी नहीं हुई, सर। नो सर। अभी भी नहीं हुई?
नो सर। भाई मैं No, भी यहाँ no, पे एज अ पार्टिसिपेंट बैठा हुआ हूँ और मेरे पास सब कुछ चेंज हो रहा है, आप लोग के पास क्यों नहीं हो रहा? अब किसी के पास भी नहीं हुई इन्वर्टेड पिरामिड, अभी तक नहीं है आपके पास स्लाइड? सर इन्वर्टेड 11th पिरामिड का तो है ना। 8th स्लाइड है। हाँ तो यही तो है यही जिसकी है। हम बात कर रहे हैं अभी, और कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हैं? सर हमने बोला कि चेंज कर दिए दूसरी। अरे अल्लाह के बंदे, यही नंबर 4 पे जो है अवॉइड लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, ये है ना सामने नंबर 4, बुलेट नंबर 4, yes, Yes, sir. नंबर 3 सॉरी, Avoid अवॉइड long and लॉन्ग एंड complicated कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, words. ठीक है? व्हाई? A news story. A news story is not the place to impress people with your intelligence or command of the English. So ये कहते हैं कि अवॉइड लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, क्योंकि न्यूज स्टोरी है वो जगह नहीं जहाँ पे आप लोगों को अपनी अंग्रेजी से अपनी इंटेलिजेंस से क्या करेंगे, इम्प्रेस करेंगे, इसीलिए वन शुड बी केयरफुल। स्लाइड चेंज, हैज योर स्लाइड changed? No, sir. Yes, Inverted Yes, sir. pyramid. स्लाइड चेंज हो सर गई? News इन्वर्टेड articles पिरामिड are वाली right. टू ब्लेड्स है। हाँ बस सही यही है। News articles are written in a structure known as the inverted pyramid. In the inverted pyramid format, the most newsworthy information goes at the beginning of the story, and the least newsworthy information comes or goes at the end. ये तो clear हो गई। After you have written your stories, lead कहते हैं सब part story का जो होता है शुरू का। Order the information that follows in terms of most important to least important. जब आप lead लिख लें उसके बाद अपने information को ऑर्डर में लाना होगा, आपको एक तरतीब में लाना होगा, फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। बात समझ आ रही है? Yes. आर यू गेटिंग? जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपने क्या करना होगा, जब आप इसको लिख लेंगे देन यू हैव टू ऑर्डर देम। ऑर्डर से मुराद ये कि इनको आपने सीक्वेंस में लाना होगा कि फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। अभी इसको दिखा दूंगा आपको मैं। There is no formal conclusion in a journalism article the way there is an essay or an analysis paper. कह रहे हैं कि जैसे अच्छा आफ्टर यू हैव रिटन, मतलब जैसे ऐसे में हम कंक्लूड करते हैं इस तरह कंक्लूजन न्यूज राइटिंग में नहीं होता। There is no formal conclusion as we have in essay. अब जो लीड है, लीड इज व्हाट इज आफ्टर हेडिंग यू विल फाइंड लीड, इसके बाद लीड आपको मिलेगा, इसको लीड कहा जाता है। द लीड ऑफ न्यूज आर्टिकल इज द फर्स्ट सेंटेंस, पहला जुमला जो होता है न्यूज आर्टिकल को वो कहलाता है लीड। इट इज यूजुअली रिटन एज वन पैराग्राफ, और वो जो पहला जुमला जो होता है, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये न्यूज़पेपर से आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नजर आ रहा है? यस सर। ये इसको Yes, sir. देखिएगा, ये जो पहला जुमला है, ये द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे लेस्ट आउट, ये पूरा यहाँ से लेकर आखिर तक दिस द मैटर ऑन द मैटर, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, सो दिस इज कॉल्ड लीड। It is the most important sentence of this news or story, and it conveys what is going to happen throughout the story. देखा आपने से? ये तो सिर्फ एक मिसाल है, आगे इंशाल्लाह रात में आपको मजीद इसकी मिसालें दूंगा तो it will become clear to all of you. This is called lead. जैसे नॉर्मल जिसको इसको इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है, सिंपल सी बात है। इन सिंपल राइटिंग you can also call it इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंट्रोडक्शन you have to introduce what you are going to write, और फिर बॉडी में आपने सारी डिटेल्स लिखनी है होती है, देन कंक्लूजन करना होता है। So of a news article is the first sentence usually written. Slide change हो चुकी है ना? जी सर। Yes, sir. Yeah. So written as one paragraph that tells the most important information of the story, और ये हमें सबसे अहम इंफॉर्मेशन स्टोरी के बारे में बताता है। When writing a lead, it is helpful to use the tell a friend strategy. मैंने कहा एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम कहते हैं टेल अ फ्रेंड, यानी कि आपने दोस्त को बताना है कि आप क्या बताना है। इमेजिन यू हैड टू सम अप टू अ फ्रेंड इन वन सेंटेंस आप व्हाट योर स्टोरी इज अबाउट। आपने अपने दोस्त को एक ही जुमले में बताना है कि आपकी स्टोरी क्या है। हाउ वुड यू सम अप क्विकली व्हाट हैपेंड? आवर स्टोरीज लीड आंसर द 5 W's इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। फिर क्या है कि जो उसका लीड जो है आप एक जुमले में लिख देते हैं, उसके बाद आपने आगे डिटेल बतानी होगी, ठीक है? वो जो डिटेल्स होगी उनमें इन 5 W's को जवाब देना होगा।
फिर उन्होंने यहाँ पे बताया कि फॉर एग्जाम्पल द अटलांटिक पुलिस डिपार्टमेंट विल होल्ड अ मेमोरेबल सर्विस वेंसडे एट होली क्राइस्ट चर्च इन बके फॉर फॉलन ऑफिसर। तो ये तो खैर वहाँ की न्यूज़ है, तो इसमें मैं आपको मिसाल अपने यहाँ की दूंगा। ये जो हमारी जो न्यूज़ है, किसी और न्यूज़ को हम उठा लेते हैं, ठीक है। कोई इन्फ्लेशन को देख लेते हैं, ये क्या है, इसको देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, अब ये जो है लीड क्या कह रही है, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू शौकत तरीन downplayed on Friday the incidence of poverty in Pakistan while insisting that its rate has gone down recently। ठीक है, बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान इसका था। अब इसी को आगे जो है इन डब्ल्यू से किया गया है। स्पीकिंग टू जर्नलिस्ट एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मिस्टर ट्रेन सेड दैट द लिस्ट, किससे बात की, कौन था जिससे बात किया, स्पीकिंग टू जर्नलिस्ट। बात समझ आ रही है? हु का जवाब यहाँ पे आ गया, किनसे? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? सर आवाज आपकी आ रही है, स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन रुक गई है। हाँ सर सही है अभी आप। तो मैं कह रहा था कि अब देखिए ये पहला जो सेंटेंस था ये है लीड, ठीक है। अब उस लीड के 5 चीजों का जवाब देना होगा वही डब्ल्यू से। तो यहाँ पहला आपके पास है स्पीकिंग टू। पहली बात जो लीड है वो ये है कि जो सबसे अहम जो फैक्ट वो ये है कि एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू शौकत तरीन डाउनप्लेड ऑन फ्राइडे द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। इसको डाउन प्ले कर दिया, यानी कि इसको सीरियसली, यानी वाइल इंसिस्टिंग दैट इट्स रेट हैज गॉन डाउन रिसेंटली। और मजे की बात है, कह रहा है कि पॉवर्टी का जो रेट है वो नीचे हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। अब इसको मजीद जो है डब्ल्यू डिटेल में बताया जाएगा आगे से। ये एक जुमला है पूरा, दिस इज कॉल्ड लीड। फिर क्या, स्पीकिंग टू जर्नलिस्ट, किससे स्पीक बात की, हु, जर्नलिस्ट एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वेयर मिस्टर तरीन सेड, किसने कहा, हु। Their largest figures by the World Bank show the incidence of poverty dropped to 4.2% from 5.4 a year ago, ठीक है। Our problem is inflation which has affected the lower middle class in urban areas the most, he said। ये पैराग्राफ खत्म हो गया। फिर मजीद जो कहा उसने आगे, तो इस पैराग्राफ में आपको हु और व्हेन और वेयर, इन 3 सवालों के जवाब मिल गए। कैसे मिले, कोई मुझे बताएगा दोबारा, जैसे मैंने बताया। Speaking to journalists at the Pakistan Stock Exchange, Mr. Traveen said। तो यहाँ मिस्टर तरीन ने बात की, किससे की, जर्नलिस्ट से की। कहाँ पर की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। दो हु और वेयर का आ गया। द लेटेस्ट फिगर्स बाय द वर्ल्ड बैंक शो द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी ड्रॉप टू 4.2। और ये बात हो रही है कब की, लेटेस्ट मतलब अभी की, व्हेन अभी की, परसेंट फ्रॉम, ठीक है। तो 3 डब्ल्यूज के जवाब यहाँ पर आपके पास आ गए। आप मजीद आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मजीद देखेंगे आपके मजीद वो जो कर रहे हैं, वर्थ थ्राइविंग एज बम्पर क्रॉप्स, हाउ का जवाब मिलेगा आपको। रिकॉर्ड सेल्स ऑफ मोटरसाइकिल, ही आल्सो बिलीव द मिडिल एंड अपर क्लासेस वर डूइंग वेल। रेस्टोरेंट्स आर फुल ऑफ पीपल, कार्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, ही रिमार्क। हाउ, बात समझ आ रही है? ही रिमार्क यानी कि बता रहे कैसे आप ये साबित कर रहे हैं कि भाई ये जो है पॉवर्टी कम हो रही। तो कह रहा है कि रेस्टोरेंट जो है लोगों से भरे हुए हैं, गाड़ियां महंगी हो रही हैं। रिपीटिंग इज स्टेटमेंट फ्रॉम 2 weeks ago time, Mr. Trin again warned speculators in the foreign exchange, ठीक है। फिर इस तरह से चलता हुआ जा रहा है। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि किस तरह से पहला जो आपके पास जो है वो यही है कि यू हैव टू यूज लीड। लीड में उस सबको आपने सम करके एक जुमले में बताना, देन यू हैव टू अनफोल्ड देम। फिर आप उसको ऐसा ऐसा अनफोल्ड करेंगे और उसको आप मेंशन करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, खुदा आप उससे कर लीजिएगा। टास्क देता हूँ, आप लोग करते हैं। हैव यू collected 10 ads which I asked you to collect?
because tomorrow will be the day for this. शाम के लिए मैं आपको कुछ दे रहा हूँ. After 9 o'clock I will start your sessions and I will try to complete it, and that those sessions will be related to what we are doing right now, news story. मैं चाहूँगा कि आप कुछ news stories ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है, नेट से आप देख लीजिएगा. शुड बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स और शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ, ठीक है, जरूरी नहीं कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो. तो आप उसको देख लीजिएगा, अपने पास रखिएगा ताकि यू कैन आल्सो गिव एग्जांपल. सर कोई भी 10 एड्स हो? नहीं, 10 एड्स तो कल के लिए होने चाहिए ना, वो तो 10 एड्स स्लोगन्स जो होने चाहिए कल के लिए, स्लोगन्स, ठीक है, फॉर मीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस, बिकॉज वी विल डू एनालिसिस ऑफ मीडिया डिस्कोर्स. वो कल के लिए. शाम के लिए जो रात के लिए जो बता रहा हूँ आपको, आफ्टर 9 आई विल टेक योर क्लासेस एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस वन. तो उसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि यू शुड ट्राई टू गेट एटलीस्ट वन न्यूज स्टोरी, ठीक है. जैसा मैंने आपको दी, इस तरह से आपको ये स्टोरी को स्टडी करके आपने उसको डिस्कस करना होगा यहाँ पे, ठीक है. बात समझ आ रही है? Yes, sir. Attributing information. All information in a news article must be attributed to the source where the report got or his information. The reporter must indicate his/her article where material was obtained from an interview, court documents, census, direct quotes, and paraphrasing can be used to attribute information obtained in an interview. तो ये बता रहे हैं मुख्तलिफ sources कैसे आपको information मिली, ये भी बताया जाना होता है इसमें ना. जैसे आपके सामने यहाँ पर ये देखें क्या है कि हेडेड बाय द चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, द 3 मेंबर, ये सब बताया. उसके बाद आपके पास वाइल रिप्लाइंग टू ए क्यूरी ऑफ द बेंच, ये पूरी डिटेल आई, ठीक है. तो कहीं ना कहीं इसने बताया होगा कि भाई ये यहाँ से इन्हें पता चली है, ठीक है. ये पूरा उसको ही बता रहे हैं. जैसे ये है ना, ही रिमार्क, और यहाँ पे ये आपके पास है स्पीकिंग टू जर्नलिस्ट एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. तो कहाँ से इंफॉर्मेशन लिए और कैसे लिए, यू विल आल्सो फाइंड दीज थिंग्स आर आल्सो मेंशन्ड हियर. When you read them, you will find them, right? Refinance schemes hinder stock listings. यहाँ पे Mr. Trillion again want. Is that clear? So what is your evening today's task further? Inshallah, we'll try to complete it tonight, right? Literary discourse and journalistic writing का जो है हम syllabus इंशाल्लाह complete करने की कोशिश करेंगे, and from next week inshallah presentations will start, and I will try to complete the presentation as soon as possible. कल की कोशिश है कि कल media discourse analysis को complete कर लें ताकि हम next week सिर्फ presentations पर ही दो. फिर after the completion of presentation there will be one class each, that is called revision for both. तो इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे. व्हाट आर फर्दर एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ स्टोरी, हमने लीड तक अपने आप को रखा है, ठीक है. तो लीड के बारे में मजीद आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नीचे देख लीजिएगा. व्हाट इज कॉल्ड लीड. लीड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द न्यूज़, एंड इट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एनी न्यूज़, दैट इज कॉल्ड लीड. एनी क्वेश्चन? मिस मेमुना को बुलाता और करता हूँ. Yes, does anybody have any question? No, sir. Okay, so what is your task for tonight? क्या जो बताया था आप लोगों को मैंने? Sir, collect 5 ad slogans and a news story should be related. Any news. to Any news you have to find out and you have to analyze that news, right? This is your tonight task, and you will discuss with me, and you'll have to show what news have you found and how have you analyzed that news. So I will continue this inshallah. Okay. Sir, class की timing क्या होंगी? कितने बजे से 9 start के बाद ही करेंगे आज होगी. शाम की? 9 के बाद, 9 बजे से या 9:15 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है.
स्टूडेंट्स को जो है ड्रामा देखने लग जाते हैं तो उस वजह से उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आफ्टर 9 इज दैट क्लियर? यस Okay. सर। ओके, तो 9 के बाद आगे किसी को प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह। और ये इसी हफ्ते की बात है, फिर इसके बाद जो प्रेजेंटेशन होंगी, प्रेजेंटेशन में तो ज़ाहिर है आपकी तैयारी होगी, दैट विल बी अनदर केस। अल्लाह हाफ़िज़।